Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today in this lecture we will discuss four reduction reactions. Let us start with reduction of aromatic rings or aromatic compounds. Now reduction of aromatic compound is carried out by dissolving lithium or sodium alkali metals in liquid ammonia. This reduction reaction is also called Birch reduction. When sodium is dissolved in the liquid ammonia, the solution thus formed is deep blue solution, and it is becomes a source of electron because sodium metal in this solution loses electrons. Now, when aromatic compound is treated with this solution, the electron from sodium is transferred to one of the carbon atom of the aromatic ring, and in this way, as shown by the arrows, a radical anion is formed. इसमें इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये एनाइनिक कार्बन है, इस पर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये रेडिकल कार्बन है, तो दिस स्पीशीज कॉल्ड रेडिकल एनाइन. Now, this radical anion undergoes protonation by a proton source, which is alcohol. Usually, alcohol is used as a proton source in this reaction, and at this carbanionic carbon, protonation occurs by this proton source alcohol molecule, and in this way, one hydrogen is transferred at this carbon. Now, at this carbon there is a free radical, and other electron from the sodium is transferred at this carbon, and carbanion is again formed at this carbon as well. And again this carbanion undergoes protonation by this proton donor source at this carbon, and in this way two hydrogens are transferred at opposite carbons. One is this hydrogen and other is this hydrogen, and in this way this benzene ring, aromatic ring, is converted into cyclohexadiene ring, a dihydro compound. This reduction is called partial reduction because only two hydrogens are transferred at opposite carbons. So that is why it is called partial reduction. एरोमेटिक कंपाउंड की कंप्लीट रिडक्शन जो है भी की जा सकती है, यानी ये तीनों डबल बॉन्ड जो हैं रिड्यूस हो सकते हैं बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, बट इन दिस रिएक्शन only two hydrogens are transferred at opposite carbon atoms. So that is why it is called partial reduction. This reaction is a named reaction, and it is named as Birch reduction on the name of the scientist who carried out this reaction. Now, next point about this reaction after mechanism is that two carbon atoms which are reduced to give dihydro product pass through carbanionic intermediate. आप ये मैकेनिज्म में देख सकते हैं कि एक ये कार्बन एटम है जहाँ पर हाइड्रोजन आया है, ये रिड्यूस हुई है, तो हाइड्रोजन बाद में आता है, पहले यहाँ पर कार्बेनाइन बनता है. इसी तरह ये जो कार्बन एटम है, ये यहाँ पहले कार्बेनाइन बना है, फिर ये प्रोटॉन डोनर सोर्स से हाइड्रोजन आया. तो जिन कार्बन पर कार्बेनाइन बनता है और वो स्टेबल होता है, उन कार्बन पर जो है वो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होता है और वो कार्बन जो है दे अंडरगो रिडक्शन. तो अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सब्सटीट्यूएंट्स लाइक कार्बोक्सिल ग्रुप अगर मौजूद होंगे तो दे स्टेबलाइज द कार्बेनाइन, while electron donating substituents like methoxy group they destabilize the carbanion. So that is why reduction thus takes place on the carbon atoms attached with the electron withdrawing substituents and not on the carbon atom on which electron releasing substituents are present. For example,
ये आप देख सकते हैं कि ये मिथॉक्सी बेंजीन है, इसे एनिसोल भी कहते हैं। तो अब इसमें ये मिथॉक्सी ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इस कार्बन पर जो है वो कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा, तो लिहाजा इस कार्बन पर रिडक्शन नहीं होगी और हाइड्रोजन ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यही वजह है कि इसका जो एनाइन रेडिकल बनता है उसमें कार्बन आयन इस कार्बन पर और रेडिकल इस कार्बन पर बनेगा, यानी कार्बन आयन इस कार्बन पर और रेडिकल इस कार्बन पर नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और ये कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा। तो यह इस कार्बन और इस कार्बन पर रिडक्शन नहीं होगी, रादर पहले यहाँ कार्बन आयन बनेगा इस कार्बन पर और यहाँ हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा, और फिर बाद में यहाँ कार्बन आयन बनेगा और यहाँ हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा, और इन दिस वे दिस कार्बन एंड दिस कार्बन दे अंडरगो रिडक्शन और डाईहाइड्रो कंपाउंड इन कार्बन पर ये बनेगा। और इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो ये कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है। तो इसका जो एनाइन रेडिकल जो है वो बनेगा वो इस तरह होगा कि कार्बन आयन इस कार्बन पर बनेगा और वो चूँकि वो स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन होगा। और ये कार्बन एट फर्स्ट यहाँ हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा और बाद में यहाँ कार्बन आयन बनेगा तो यहाँ हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा। तो दिस कार्बन विच कैरीज द सब्स्टिट्यूएंट दैट अंडरगोज रिडक्शन, जबकि इस केस में क्या है कि दिस कार्बन विच कैरीज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट is unable to undergo reduction. Now next point is ये मिथॉक्सी बेंजीन की रिडक्शन जब करते हैं तो इसकी एक एप्लीकेशन है कि अब इसकी अगर आप रिडक्शन करेंगे तो वो किस कार्बन पर होगी, इस कार्बन और इस कार्बन पर नहीं होगी, रादर इस कार्बन और इस कार्बन पर डाईहाइड्रो प्रोडक्ट बनेगी और हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगी, या फिर इस कार्बन या इस कार्बन पर भी कर सकते हैं। तो जब आप इस कार्बन और इस कार्बन पर करेंगे तो ये दो बॉन्ड जो हैं वो इस तरह होंगे, और इस इन दिस वे वी विल गेट दिस फंक्शनल ग्रुप विच मे बी कॉल्ड एज विनाइल। ये विनाइल ग्रुप है और ये ईथर है, विनाइल ईथर। अब ये जो विनाइल ईथर होता है, अगर इसकी हम एसिडिक वाटर के साथ इसको ट्रीट करें तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सिनोन, और ये साइक्लोहेक्सिनोन जो है बाद में यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफ़र होगा और डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट कर देगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कॉन्जुगेटेड है, तो इस 2 साइक्लोहेक्सिनोन में चेंज हो जाएगा। और इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म जो है ये एक ओपन चेन कंपाउंड से समझाया, ये भी एक विनाइल ईथर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ डबल बॉन्ड के थ्रू यहाँ इसकी प्रोटोनेशन होगी इस कार्बन पर, और इस कार्बन पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। बाद में ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, बाद में इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पर ये वाटर का अटैक होगा और वाटर में से लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, और इन दिस वे एक ही कार्बन पर मिथॉक्सी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, और इसे हम हेमी एसीटल कहेंगे। हेमी एसीटल आपको पता है कि ये रिवर्सिबली ब्रेक होकर कार्बोनाइल कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं और अल्कोहल बन जाते हैं। तो ये इस तरह इससे हमें कार्बोनाइल कंपाउंड, इस केस में हमें एसिटाल्डिहाइड मिलेगा, जबकि इस केस में हमें ये साइक्लोहेक्सेनोन मिलेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्शियल रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी बिर्च रिडक्शन। Now the next reduction reaction is actually the reductive coupling of carbonyl compounds. ये carbonyl compound की reduction है, और एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस रिडक्शन 2 कार्बोनाइल कंपाउंड यानी 2 कीटोन या 2 एल्डिहाइड एक दूसरे के साथ कंडेंस हो जाते हैं। तो दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड रिडक्टिव कपलिंग। तो ये भी एक डिज़ोल्विंग मेटल सिस्टम के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म इसका है। इसमें हम एक्चुअली ये कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन है, बेंजोफिनोन इसका नाम है। कोई भी कीटोन आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ये एग्जांपल बेंजोफिनोन की ली हुई है। तो इसको जब हम सोडियम मेटल के साथ
ट्रीट करते हैं बाय डिज़ोल्विंग सोडियम इन ईथर। तो ईथर में सोडियम को डिज़ोल्व करके जब इसमें कीटोन ऐड किया जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम इज़ ट्रांसफर्ड टू दिस ऑक्सीजन एटम, और 1 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड ब्रेकेज से यहाँ मिलेगा, और इस तरह ये कार्बेनाइन जो है या एनाइन रेडिकल बनेगा। इन दिस केस चूँकि ये एनाइन रेडिकल कीटोन से बन रहा है तो इसे कीटाइल रेडिकल कहेंगे। तो अब ये एनाइन रेडिकल जो है, अगर तो हमारे पास एक प्रोटॉन डोनर सोर्स है तो ये पाथवे जो है वो अडॉप्ट करेगा और ये प्रोडक्ट एक्चुअली फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगी। वो इस तरह के ये कीटाइल रेडिकल जो है इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पर रेडिकल बना हुआ है, तो ये इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर रेडिकल है। तो जब ये कार्बन पर इस तरह कार्बेनाइन बनेगा तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनर सोर्स की मौजूदगी में, इफ़ दिस रिएक्शन इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो फिर ये यहाँ से एक हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा कार्बन पर, और बाद में ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो है ये भी सोडियम के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा और ये एनाइन बनेगा, और यहाँ पर जो है इसको जब हम इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा। इन दिस वे वी विल फाइनली गेट अल्कोहल, और इस केस में बेंजोफिनोन से शुरू करते हुए जो अल्कोहल हमें हासिल होगा इसको बेंज हाइड्रोल कॉमनली कहेंगे। अब रिडक्टिव कपलिंग ये है कि जब ये फर्स्ट स्टेप में ये कीटाइल रेडिकल बनता है तो इसमें कार्बन पर ऐसे फ्री रेडिकल है, और इस तरह के दो जो हैं वो कीटाइल रेडिकल, एक दूसरा कीटाइल रेडिकल जो है उस पर भी ऐसे ही कार्बन पर फ्री रेडिकल होगा, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड दोनों का ये बॉन्ड जो है ये दोनों कीटाइल रेडिकल के दरमियान ये वाला बॉन्ड जो एरो से इंडिकेट मैं इस वक्त कर रहा हूँ, ये बॉन्ड जो है दोनों के दरमियान बनेगा, और इस तरह इस कार्बन कार्बन बॉन्ड फार्मेशन की वजह से जिससे दो कीटोन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इस बॉन्ड के थ्रू लिंक हो गए हैं, तो दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड रिडक्टिव कपलिंग। अब इसमें जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आफ्टर एसिडिफिकेशन यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगी इस ऑक्सीजन पर भी और इस ऑक्सीजन पर भी, और इस तरह हमें ये एक डाईओल जो है वो हासिल होगा, और इस तरह के डाईओल को हम पिनाकोल जो है वो कहते हैं। तो दिस इज़ रिडक्टिव कपलिंग, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पिनाकोल फार्मेशन जो है दैट इज़ कॉल्ड रिडक्टिव कपलिंग, क्योंकि इसमें दो कीटोन के मॉलिक्यूल आपस में कपल हो रहे हैं और डाइमराइज हो रहे हैं और उनके दरमियान कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। यही मैकेनिज़्म जो है आप ये इस सिस्टम से भी कर सकते हैं। ये कीटोन एसीटोन है, और इसको अगर आप मैग्नीशियम मेटल सिंपली या मैग्नीशियम का मरकरी के साथ मिक्सचर जिसे मैग्नीशियम अमलगम कहेंगे, जब इसके साथ ट्रीट करेंगे तो ये एनाइन रेडिकल जो है वो इससे बनेगा, और इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और इस तरह के दो मॉलिक्यूल जो आपस में ऐसे उनके दरमियान कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, और फाइनली आफ्टर प्रोटोनेशन ये बीपिनाकोल बन जाएगा। तो ये इट वाज द सेकंड रिएक्शन विच वाज कॉल्ड रिडक्टिव कपलिंग, जो कि इस एग्जांपल में सोडियम को ईथर में डिज़ोल्व करके कैरी आउट किया जा रहा है, और इस एग्जांपल में मैग्नीशियम मेटल या मैग्नीशियम मरकरी का अमलगम जो है वो है, और ये मेटल जो हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सोर्स का काम कर रहे हैं। नो थर्ड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ आवर टूडेज लेक्चर इज़ रिडक्टिव फिशन, जिसे हम हाइड्रोजिनोलाइसिस भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ कंपाउंड की हाइड्रोजिनोलाइसिस जो है वो तो बाद में होगा, पहले ये हम करेंगे रिडक्टिव रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप या रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव फिशन नेक्स्ट है हमारा। तो रिडक्टिव रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप जिसे रिडक्टिव एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो इन रिएक्शंस में ऐसे होगा कि रिडक्शन तो होगी एट फर्स्ट, लेकिन एज ए रिज़ल्ट ऑफ रिडक्शन
कुछ ग्रुप जो हैं कंपाउंड में से एलिमिनेट होंगे। तो दैट इज़ वाई दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडक्टिव रिमूवल और रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो इसकी पहली एग्जांपल ये है कि ये एक जिसमें हम जिंक एज ए मेटल जो है वो यूज़ करेंगे, और इसमें इस एग्जांपल में हम एक जो है वो अल्फ़ा सब्स्टिट्यूटेड कीटोन, ये एक कीटोन है, साइक्लिक कीटोन है, साइक्लोहेक्सेनोन इसका नाम होगा, और इसकी ये अल्फ़ा पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यूजली वो अल्फ़ा पोजीशन पर होता है। तो इसमें ये जिंक मेटल जो है ये अल्कली मेटल की तरह ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसमें ये सेकंड ए ग्रुप से बिलोंग करती है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दीज 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम जिंक टू दिस ऑक्सीजन ऑफ द कीटोनिक ग्रुप, और इन दिस वे this enolate ion is found as shown by the arrows. Now this enolate ion, after getting protonation from acetic acid, it is converted into enol, और वो enol जो है टाटोमराइज होकर फिर इस साइक्लोहेक्सेनोन में चेंज हो जाएगा। तो नेट रिज़ल्ट ये है कि इस अल्फ़ा सब्स्टिट्यूटेड कीटोन में से अल्फ़ा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एनाइन या इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, और रिडक्शन भी हो गई है और रिमूवल भी हो गई। तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिडक्टिव रिमूवल of the functional group. Now another example in which 1,2 डाईहेलाइड या विसिनल डाईहेलाइड, ऐसा कंपाउंड जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटमों पर हेलो ग्रुप लगे हों लाइक ब्रोमो क्लोरो, तो इनको हम विसिनल डाईहेलाइड कहते हैं। तो इन विसिनल डाईहेलाइड से अल्कीन बनाने का एक बड़ा क्लासिकल तरीका है, जिसमें हम विसिनल डाईहेलाइड को जिंक मेटल के साथ ट्रीट करते हैं, और इसमें भी इसको भी आप रिडक्टिव रिमूवल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जिंक जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है हेलोजन्स को, और इन दिस वे ये दोनों हेलोजन जो हैं वो इसमें से रिमूव हो जाते हैं और इस तरह अल्कीन बन जाता है। और अगर ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड हो, जैसे ये 2-3, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, 2,3 डाईक्लोरोप्रोपाइलीन, ये अगर एग्जांपल जिसमें ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड है, तो जब इसको जिंक मेटल के साथ इन एथेनॉल जो है एक्वस एथेनॉल में डिज़ोल्व करके जब इसको ट्रीट करेंगे, तो यहाँ इसकी भी इसी तरह रिडक्टिव रिमूवल होगी 2 हेलोजेंस की, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। और इस तरह ये 2 डबल बॉन्ड जो हैं वो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होंगे। तो ऐसे कंपाउंड को जिसमें इस तरह क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, उसे हम अलीन कहते हैं, तो ये अलीन बन जाएगा। Next example of reductive elimination is this reaction in which an alcohol जो है molecule is first treated with paratoluene sulfonyl chloride, which is also called tosyl chloride, जिसे हम मुख्तसरन TSCl लिखते हैं। तो इसमें एक्चुअली अल्कोहल एक पुअर लिविंग ग्रुप है, तो इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको आप गुड लिविंग ग्रुप में चेंज करना होगा। गुड लिविंग ग्रुप में चेंज करने के लिए हम इस टोसाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, जिसमें से HCl का रिमूवल होता है। TS ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन पर लगता है। तो इन दिस वे ये टॉसिलेट बन जाता है, अल्कोहल से अल्कोहल टॉसिलेट बन जाएगा। नो इट बिकम्स गुड लिविंग ग्रुप। और अब इसको अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करें, विच इज़ हाइड्राइड आयन डोनर। हाइड्राइड आयन जो है वो एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो बैक साइड से अटैक करेगा और इस तरह टॉसिलेट को इसमें से रिमूव कर देगा, और इस तरह अल्टीमेटली ये अल्कोहल जो है वो अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन अल्केन में चेंज हो जाएगा। तो ये एक SN2 टाइप ये स्टेप होगा, ये जो सेकंड स्टेप है। तो जिस तरह ये रिडक्शन हो रही है, रिडक्टिव रिमूवल हो रही है, इसी तरह एक ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है, इनकी भी ऐसे ही जो है वो SN2 टाइप रिएक्शन होगा अगर इनको आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से
ट्रीट करें तो हाइड्राइड आयन का अटैक होगा और ब्रोमो इसमें से निकल जाएगा। और इस तरह अल्काइल हैलाइड, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, इसमें भी हाइड्राइड आयन का बैक साइड से अटैक होगा और ब्रोमो निकल जाएगा। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अपने कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट हाइड्रोकार्बन अल्केन में चेंज हो जाएंगे। लेकिन इसमें चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो अदर जो सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप हैं वो भी मुतासर होते हैं। तो इसकी बजाय आप सोडियम सियानोबोरोहाइड्राइड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि थोड़ा वीकर है रिड्यूसिंग एजेंट और सिलेक्टिव रीजेंट है, वो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइंस टू देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अब ये देखें, ये एक अमाइन है और प्राइमरी अमाइन है जिसमें अमाइनो ग्रुप है। तो इसको भी अगर आप टोसाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये टोसिलेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। फिर ये जो रिजल्टिंग कंपाउंड है इसको अगर आप इस कंपाउंड के साथ जिसमें ये अमाइनो ग्रुप है और इधर ये ऑक्सीजन है और उस पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ, तो इसको हम हाइड्रोक्सल अमाइन ओ सल्फोनिक एसिड इसको हम कहेंगे। तो इसके साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो इसका अमाइनो ग्रुप जो है वो यहाँ पे इस नाइट्रोजन पर इस तरह ये लग जाएगा और बाद में ये अल्कलाइन कंडीशन में जब ये रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो यहाँ से ये बेस की मौजूदगी में यहाँ से एक इस अमाइनो ग्रुप जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ इसमें से एक हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह ये एनाइन बनेगा और इस एनाइन से फिर ये टोसिलेट ग्रुप का रिमूवल होगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये ग्रुप बनेगा जिसे हम डाईआमीनियम या डाईआमीन ग्रुप कहेंगे और ये अनस्टेबल होता है। इसमें से यूँ ही ये बनता है, इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है कि ये अनस्टेबल है और रिएक्टिव इंटरमीडिएट है और इसमें से ये नाइट्रोजन जो है इसका रिमूवल हो जाएगा और ये H जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह ये प्राइमरी अमाइन भी अपने पेरेंट अल्केन हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। Now the last reaction of our today's lecture is reductive fission. Actually it is hydrogenolysis, लेकिन ये हम यूज़ करेंगे इसको एक रिएक्शन में सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स में। आपको पता है कि पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स जो होते हैं ये अमाइनो एसिड की कंडेंसेशन से बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो अब कोई भी दो अमाइनो एसिड जो हैं, फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड है, ये फिनाइल एनालीन है, ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये इसका अमाइनो ग्रुप है जो इस वक्त ज्विटराइन की फॉर्म में मौजूद है और ये ग्लाइसिन है, ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये इसका अमाइनो ग्रुप है। अगर आप इन अमाइनो एसिड्स को आपस में इन लिंक करके डाईपेप्टाइड बनाना चाहते हैं तो ये एक रैंडम रिएक्शन होगा जो है जिसमें सीक्वेंस जो है ये चार मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो हैं वो बनेंगी। पहली प्रोडक्ट ये होगी जिसमें फिनाइल एलानिन पहले और ग्लाइसिन बाद में होगा। दूसरी प्रोडक्ट जो है उसमें दो फिनाइल एक दूसरे के साथ एनालिन, ये वाले दो मालिक्यूल एक दूसरे के साथ कंडेंस होंगे। तीसरी एग्जांपल में ग्लाइसिन के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ कंडेंस होगा। चौथी में ग्लाइसिन पहले और फिनाइल एलानिन बाद में एक दूसरे। तो ये चार डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं इफ़ वी कीप इन माइंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अगर आप एक ख़ास सीक्वेंस में करेक्ट सीक्वेंस में जो कि आपका रिक्वायर्ड सीक्वेंस है, फ़र्ज़ करें आप ये इन चारों में से ये आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले फिनाइल एनालिन लेना पड़ेगा। ये आपने फिनाइल एनालिन जो है एलानिन आपने ले लिया और उसके अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यानी जो आपने सीक्वेंस में पहले रखना है अमाइनो एसिड उसका अमाइनो ग्रुप प्रोटेक्ट करेंगे और जो आपने बाद में रखना है ग्लाइसिन को हमने बाद में रखना है तो उसके कार्बोक्सिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसे हम C प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड कहेंगे और इसे हम N प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड कहेंगे। तो अब इसका ये अमाइनो ग्रुप फ्री होगा और इसका ये कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होगा और इन्हीं एंड से ये एक दूसरे के साथ कंडेंस होंगे। तो ये सीक्वेंस एक बन जाएगा जिसमें
फिनाइल एलानिन पहले और ग्लाइसिन बाद में हम ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो हैं इनको हम रिवर्सिबली ब्रेक ऑफ कर देते हैं, इसको हम डी प्रोटेक्शन कहते हैं। तो जब डी प्रोटेक्शन करते हैं तो इस स्टेज पर हम रिडक्टिव फिशन इसकी करते हैं और हाइड्रोजिनोलाइसिस हम करेंगे। तो ये फर्दर डिटेल जो है वो आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फिनाइल एलानीन है, इसका ये अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप। अब हमने इसके इस अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए ये हम रीजेंट जो है वो यूज़ करेंगे। ये रीजेंट ये फिनाइल ग्रुप है, इसके साथ CH2 लगा हो तो इसे बेंजाइल कहते हैं, बेंजाइल के साथ आगे O लगा हो तो इसे हम बेंजाइलॉक्सी कहते हैं, और आगे C डबल बॉन्ड हो O है तो इसे हम कार्बोनाइल, तो इसका नाम होगा बेंजाइलॉक्सी कार्बोनाइल क्लोराइड। तो इस बेंजाइलॉक्सी कार्बोनाइल क्लोराइड के साथ इसे ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये अमाइनो ग्रुप जो है ये अमाइनो ग्रुप में से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये बेंजाइलॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। इधर से एक Cl और इधर से एक H जो है इसमें से एलिमिनेशन होगा और ये इस तरह ये अमाइनो ग्रुप जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। और अब इसकी डी प्रोटेक्शन अगर आपने करनी है तो डी प्रोटेक्शन में हम इसका ये जो बेंजाइल ग्रुप है इसकी CH2 वाली कार्बन है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये बाड जो है कार्बन हेट्रोएटम बाड है, सिंगल बाड है, यहाँ पे जहाँ एरो इस वक्त मौजूद है, इस बाड को हम जो है वो ब्रेक करेंगे हाइड्रोजिनोलाइसिस के थ्रू। तो ये हाइड्रोजिनोलाइसिस आपको पता है कि वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटेड प्लैटिनम। तो इससे ये हाइड्रोजिनोलाइसिस होगी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H जो है CH2 को मिलेगा तो ये टोलुइन बन जाएगा, और एक H जो है इस O को मिलेगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगी, जिसे हम चूँकि इसमें ये इस एंड पे एसिड है और इधर भी एसिड है तो इसको कार्बामिक एसिड कहते हैं। बाद में इस कार्बामिक एसिड जो कि अमाइनो ग्रुप पर लगा हुआ है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का ये CO2 जो है यहाँ से निकल जाएगा और ये H जो है यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और इस तरह ये में फिनाइल एलानीन रिकवर हो जाएगा। तो इस तरह ये फिनाइल एलानीन को पहले हमने क्या किया, प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाया, और ये रिडक्टिव फिशन के थ्रू हमने ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप इसमें से उतारा, यानी इसकी डी प्रोटेक्शन की। सिमिलरली ये अगर आप देखें ये फिनाइल एलानीन है, इसके अगर आप जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे तो ये ग्रुप लगाया जाता है, इसका बेंजाइल एस्टर बना दिया जाता है। यहाँ पर अगर H लगा होता तो ये फिनाइल एलानीन है, H निकल जाता है जब बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बेंजाइल ग्रुप यहाँ पे लग जाता है, तो नो इट हैज़ बिकम बेंजाइल एस्टर। अब ये बेंजाइल एस्टर जो है ये इसने क्या किया है, इसको इसका कार्बोक्सिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया। तो बाद में इसकी भी डी प्रोटेक्शन कैसे होती है, ये बेंजाइल ग्रुप और इस ऑक्सीजन के दरमियान जहाँ ये एरो मैंने इस वक्त प्लेस किया है यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये इस कार्बन और ऑक्सीजन का जो कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे इसकी रिडक्टिव फिशन होगी, हाइड्रोजिनोलाइसिस होगी। तो एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन को मिलेगा, ये CH3 बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन को मिलेगा, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा, और बाद में ये ज्वीटराइन ये बन जाएगा, और इस तरह ये फिनाइल एलानीन इसमें से भी रिकवर हो जाता है। तो यानी कोई भी अमाइनो एसिड, ये तो फिनाइल एलानीन के एग्जांपल से समझाया है कि पहले उसके ये अमाइनो ग्रुप को प्रोटीन के साथ, और ये इसकी डी प्रोटेक्शन हमने कैसे की है, हाइड्रोजिनोलाइसिस, जिसे हम रिडक्टिव फिशन भी इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि एडिशन के नतीजे में क्लीवेज हो जाती है और मॉलिक्यूल दो हिस्सों में बट जाता है, ये जैसे ये टोलुइन और इसमें चेंज हो गया तो इसको रिडक्टिव क्लीवेज भी कहते हैं या रिडक्टिव फिशन भी कहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिडक्टिव फिशन और रिडक्टिव क्लीवेज, जिसका यूज़ हमने पढ़ा है सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड में या पेप्टाइड सिंथेसिस में। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।